আজকে ভগবত পাঠের দ্বিতীয় দিন, তো খুব বর্ষা নেমে গেছে, জল নেমে গেছে, সব ঠাকুরের মহিমা দেখা যাক। হ্যাঁ, আপনারা দেখলেন আজকে দ্বিতীয় দিন। আর ওইখানে অনেক বড় ঠাকুরমশাই এসছে, আপনারা তো জানেন। আমি তো লাইভও দিচ্ছি, ভিডিও দিচ্ছি। তো আচার্য গৌরব কৃষ্ণ গোস্বামীজি এসছেন, তো উনি ভাগবত করছেন। তো ওনার ভাগবত আপনারা দেখবেন, আমি যতটা পারি আপনাদেরকে কাছ থেকেই দেখাবো। আজকে দ্বিতীয় দিন, চলুন দেখায়। গৌরব গোস্বামী বিশাল বিখ্যাত বৃন্দাবনে, চলুন আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। জল পড়ছে, এরকম এখনো আসেনি, মোটামুটি 5:30 বাজে চলছে। তো আজকে দ্বিতীয় দিন ভগবত পাঠের জলে আপনাদেরকে দৃশ্য দেখাবো, চলুন। এরকম পুরো জল দেখতেই পাচ্ছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম কী অবস্থা হয়েছে। আজকে সেকেন্ড দিন, ভগবত পাঠের সেকেন্ড দিন, দ্বিতীয় দিন, কিন্তু এখন যা জল হচ্ছে, কাল রাত থেকে গোটা রাত জল হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, অবস্থা এত তো ভক্তগণ, হ্যাঁ, মানুষ আসবে কী করে, হ্যাঁ, এত জলে। হ্যাঁ, এখনও প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়নি। হ্যাঁ, কালকে বলেছিল 5টা থেকে আরম্ভ হবে, কিন্তু এত বৃষ্টির জন্যে, প্রচুর বৃষ্টি, দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা। হ্যাঁ, সব মাইক উঠাতে হয়েছে, দেখুন। ছাতা নিয়ে আমাদেরকে করতে হচ্ছে। আজকে দ্বিতীয় দিন ভগবত পাঠে, তো দ্বিতীয় দিনে দেখুন অবস্থা। এখন 5:30 বাজছে, ভক্তগণ আস্তে আস্তে সবাই আসছে, কিন্তু বৃষ্টির জন্যে এখনও স্টার্ট হয়নি, বা ভক্তগণও এখনও ভালোভাবে পৌঁছেনি। প্রচুর কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আপনারা কামনা করবেন, আশীর্বাদ করবেন যাতে জল ছাড়িয়ে যায় আর সবাই ভক্তগণ আসতে পারে, আর ভগবত পাঠের লিখাতে পারে। আপনারা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যতটা পারবেন শেয়ার করবেন। তো আজকে গৌরব গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে মহারাজের আজকে সেকেন্ড দিন, তো সেকেন্ড দিন আজকে হবে। হ্যাঁ, এখনও চালু হয়নি, দেখুন অবস্থা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বৃষ্টি পড়বে, ভগবানের এটা পরীক্ষা। ভগবান সব কিছুতে পরীক্ষা নেই, তো পরীক্ষায় আপনারাও পাস হন, আপনারা চলে আসুন। হ্যাঁ, আজকে সেকেন্ড দিন ভগবত পাঠের। হ্যাঁ, আজকে গৌরব গোস্বামী আসছে বৃন্দাবনে, তো আপনারা চলে আসুন। সবাই ভক্তগণ আস্তে আস্তে আসছে, কেউ দেরি হচ্ছে আজকে বৃষ্টি, হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা সবাই আসুন, এসে পরে আনন্দ অনুভব করুন। দেখতেই পাচ্ছেন জল হচ্ছে, তো আপনারা বাড়িতে থাকুন না, চলে আসুন, ছাতা নিয়ে চলে আসুন, কেউ বর্ষাতে নিয়ে আসুন, কিন্তু আসুন। হ্যাঁ, আপনারা যেমন আস্তে আস্তে সবাই আসছে, কিন্তু জল কিন্তু থামেনি, জল কিন্তু পড়েই যাচ্ছে। ঠিক আছে, কখনো কম কখনো বেশি, মনে হচ্ছে বর্ষাটা পুরোপুরি নেমে গেছে, কিন্তু এটাই ভগবানের পরীক্ষা আর কানহাজির পরীক্ষা। তো আপনারা পরীক্ষায় পাস হতে হবে, আপনারা চলে আসুন। যারা যারা বাড়িতে আছেন ছাতা নিয়ে চলে আসুন, বর্ষাতে পরে আসুন, কিন্তু আসুন, এসে পরে বৃন্দাবনের যে এত বড় গৌরব গোস্বামী যে এসছেন, তার বৃন্দাবন, স্বয়ং বৃন্দাবন চলে এসছে, সেটা অনুভব করুন আসানসোলের মাটিতে। তো আসানসোলের এইটা স্যান্ডেলে আপনারা আসুন, এসে পরে আপনারা অনুভব করুন। যারা আসেননি, যারা এখনও দেরি আছে, এখনও বেরেননি, তারা আপনারা চলে আসুন, এসে পরে অনুভব করুন। আপনারা আসবেন আসানসোলে, আসানসোল থেকে বলবেন জুবলি পাম্প থেকে চলে আসবেন, তাকেই বলবেন যে স্যান্ডেল যাব, দেখিয়ে দেবে। তো পেনার আছে, ফোন নম্বর আছে, কোনো অসুবিধা হবে না, আপনারা চলে আসুন, এসে পরে ভগবত পাঠ দেখুন। আজ ভগবতের পরে সেকেন্ড দিন, দ্বিতীয় দিন। তো আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন, अरे हाँ, तो आज पानी पड़ गया, बरसात हो गया, तो अभी भी बहुत अड़चन हो रहा है। तो आप भी कितना आदमी आने का मोटा मोटी संभव लग रहा है? इसमें परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, जो मतलब भक्त आते हैं ना, तो उसमें परीक्षाएं लेते हैं ठाकुर जी कि कौन भक्त सच्चा है। इसलिए पानी की बरसात तो होगी, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो तो आएंगे, पब्लिक आएगी। फिर भी जो भगवान को राजा रानी से प्रेम है ना, वो तो जनता आना ही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं। श्री राधे 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 राधे। ভক্ত বন্ধুদেরকে আমি জানি যত জল হোক ভক্তবৃন্দরা নিশ্চয়ই আসবে, কেন বিহারীজি আছে, যারা আসার তারা ঠিক আসবে, সবাই আসবে। কিন্তু
এই জন্য কি বিহারিজি এন্ট্রি করে গেছে আসানসোলে। যত জল জড় হোক পাবলিক নিশ্চয়ই আসবে, যত ভক্তবিন্দুরা বিহারিজি টেনে নিয়ে আসবে। তো জয় রাম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছেন এবারে কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন মহারাজ। তো এতক্ষণ ছাতা নিয়ে সবাই আসছে, হ্যাঁ, যারা আশেপাশে আছে বাইরে আছে তারা ছাতা নিয়ে আসছে, ছাতা নিয়ে আসতে হবে। দেখুন সবাই আসছে ভক্তগণরা, হ্যাঁ, তো একটু দেরি হচ্ছে, তো সবাই আসছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা একটু আগে থেকে যাচ্ছি, হ্যাঁ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চালু হবে। তো আপনারা বাড়িতে থাকেন না, তাড়াতাড়ি চলে আসুন, বৃষ্টি বর্ষাকাল তো হবেই, ছাতা রেনকোট নিয়ে চলে আসুন। হ্যাঁ, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর জল। দেখুন ছাতা নিয়ে সবাই আসছে, তো আপনারাও ছাতা নিয়ে চলে আসুন, দেরি করবেন না, জল হবে, বর্ষাকাল জল হবে, আপনারা ছাতা নিয়ে চলে আসুন, এসে পরে অংশগ্রহণ করুন আর আনন্দ অনুভব করুন। আপনারা, হ্যাঁ, ভক্তগণ সব বসে আছে, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সামনে, হ্যাঁ, তারপরে হবে আপনার আছে, আপনার ভিতর পেছনে আছে, আপনার চেয়ার বসারও আছে, প্লাস পেছনেও আছে বসার। তো সব ভক্তগণরা এসে পরে আগে থেকে বসে গেছে, এরা সব 4টা থেকে এসে পরে বসে গেছে, আপনারা দেখছেন, হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মহারাজ এখনই চলে আসবে, হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছেন জল জমে গেছিলো, তার জন্য জলটা একটু হাঁটাতে হয়েছে। তো জল হাঁটা হয়ে গেছে, এবারে কিছুক্ষণের মধ্যে মহারাজ আসবে। আপনার অরিজিনাল লাইফ এটা হচ্ছে আমাদের দেখতেই পাচ্ছি। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी तुम सामने आते, कभी दूर हो जाते। भगवत भगवान की पूजा एवं आरती के लिए श्री नवगोपाल मंडल जी, श्रीमती श्री सुखदेव मंडल जी, श्री बुद्धदेव मंडल जी एवं समस्त मंडल द्वारा मंच पर है। वे भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे एवं पूजन श्री राधे। अपने ख्याल से ही आरती में सभी खड़े हो।
छोड़ प्रभु जय जय अनंत कृपा करुणा से। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि इतनी बारिश में भी इतना दूर रास्ता पार करके जितने भी यहाँ पहुँच पाए हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बिहारी जी के कच्चे नहीं सच्चे भक्त लगते हो। इतना मौसम खराब होते हुए भी चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, परंतु फिर भी आप कैसे भी करके आ गए। ये प्रभु की कृपा ही, क्योंकि भैया कभी कभी मैं कहा करता हूँ भागवत कथा में कि तुम बैठे नहीं हो, यहाँ बिठाए गए हो, तुम आए नहीं हो, कृपा से लाए गए हो। जिस पर बिहारी जी कृपा करते हैं वही सत्संग तक पहुंच पाता है। याद रखना बंधुओं, आपके कानों में कथा तो बहुत बड़ी बात है, कथा प्राप्त करना, भागवत श्रवण करना तो बहुत बड़ी बात है, परंतु हमारे कान में भागवत के श्लोक नहीं, हमारे कान में भगवान का एक नाम भी यदि आ रहा है और कान में आए हुए उस नाम को सुनकर हम भी पलटकर साथ में प्रभु का नाम अपने मुख से गा रहे हैं, तो समझना तुम्हारे ऊपर बांके बिहारी और राधा रानी की साक्षात कृपा बरस रही है। इस कलयुग में हरि नाम का श्रवण, हरि नाम का गायन एक बार भी व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो तो वो बड़ा भाग्यशाली है, वो कृपा पात्र है। एक बार कहिए श्री राधे। तो आज ये परिस्थिति कुछ ऐसी थी, कथा में विलंब ही हुआ और अभी भी वर्षा नहीं रुक रही, लगातार वर्षा हो रही है। तो थोड़ा जो समय है आज का भागवत कथा के कुछ विशेष प्रसंगों को सुनते हुए भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। कल आप हरि के चरणों में चला है, कहते हैं ते पुनंति, ऐसा वो पापी व्यक्ति भी पवित्र हो। ये भगवत कथा की महिमा। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। एक बार संतों की ना कहीं सभा लगी हुई थी, प्रेम से कहो श्री राधे। एक सभा लगी हुई थी, सत्संग चल रहा था। उसमें बड़े बड़े संत महात्मा, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, नारद, च्यवन, सब बड़े बड़े संत बैठे थे और चर्चा ये हो रही थी, इस बात पर वहां मंत्रणा हो रही थी, विचार हो रहा था कि संसार में सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन है, सबसे निम्न कोटि का प्राणी, जिससे नीच कोई न हो, जिससे ज्यादा गिरा हुआ कोई इंसान समझा जाता है, उसको बहुत नीचा लोग समझते हैं, उसको ऊंचा नहीं मानता। कोई पूछे, पैसे को सब पूछते हैं, कोई बात नहीं, व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। एक बार को पैसा न भी हो तो ठीक है, लोग सम्मान नहीं करते, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हैं तो गुणवान व्यक्ति का समाज आदर करता है। तो केचिद वदन्ति, देखो सब विचार कर रहे हैं, संत अपनी अपनी बात रखते हैं। तो उसी समय
सबकी नजर पड़ी कि वहां संतों के बीच उस सभा में जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और 17 पुराणों को लिखने के बाद जो ग्रंथ हम श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत ग्रंथ जिन्होंने लिखा, ऐसे वेदों के हम अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता, इतना बड़ा विधि निषेध को अपने ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट करने वाला ज्ञानी हमारे बीच विराजमान है और हम अपनी अपनी बात करते हैं। अरे आप बताइए ना कि सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति कौन है? कि केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः, केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। जब वेदव्यास को पूछा, महाराज आप भी कुछ कहिए, तो वेदव्यास कहते हैं, भैया मैंने सबकी बात सुनी। कोई कहता है जिस पर पैसा नहीं वो सबसे छोटा व्यक्ति है, वो सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति है। आप में से किसी ने कहा जिसके जीवन में कोई गुण नहीं, सदाचार नहीं, आचरण नहीं, वो सबसे निम्न व्यक्ति है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें पीछे हैं। हमको तो अपनी समझ से एक ही बात मालूम चली कि मानव शरीर पाकर भी जिसने कभी परमात्मा को याद नहीं किया, उससे ज्यादा निम्न कोई व्यक्ति नहीं है। मानव योनि में जन्म लेने के बाद भी कभी एक बार बैठकर भगवान का स्मरण नहीं किया। नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः, जो स्मरणहीन है, जिसने कभी याद नहीं किया ठाकुर जी को। भैया आज जीवन लेने वाले बैठे हैं। लोग कहते हैं ना दुनिया जीने नहीं देती। हम उस संसार में जी रहे हैं जहां जीवन लेने वाली ये दुनिया बैठी है, परंतु फिर भी हम जो जीवन लेने वाले हैं ना, उन्हीं को याद करते रहते हैं, उन्हीं के लिए मरते रहते हैं, उन्हीं के लिए रोते रहते हैं। अरे आनंद तो तब आ जाए कि जीवन लेने वालों के लिए नहीं, जीवन देने वाले के लिए कभी बैठकर दो आंसू बहे। आनंद तब आए जब जिसने जीवन दिया है उसको बैठकर कभी याद करो। एक बार कहो श्री राधे राधे। तो कहीं से, क्योंकि संत सब बैठे थे, अपना अपना विचार दे रहे थे, तो किसी महात्मा की आवाज कहीं से आई, केचिद वदन्ति धनहीन नरो। में एक नदी, उस नदी का नाम बताया तुंगभद्रा। कौन सी नदी? बोलो ना जरा। तुंगभद्रा। और इस नदी के किनारे एक गांव था। गांव में बड़े भले लोग रहते थे। एक ब्राह्मण उस गांव में रहते थे, जिन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। और गृहस्थी ब्राह्मण थे, पत्नी भी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। ब्राह्मण को संतान नहीं हुई थी। संतान के मोह से बड़ा पीड़ित था, रोते थे आत्मदेव। और इनके जीवन में ऐसा प्रभाव आगे चलकर पड़ा, एक संत से मिलन हुआ। देखो, कथा भागवत की है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचना कि कथा हमारे जीवन से अलग है। ये जितनी भी कथाएं आप सुनोगे ना, हर कथा की कोई ना कोई बात तुमसे जुड़ी हुई जरूर होगी। भागवत की कोई कथा ऐसी नहीं जिससे तुमको कोई शिक्षा न मिलती हो, जो तुमको कोई उपदेश न देती हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये तुंगभद्रा नदी क्या है?
यदि व्युत्पत्ति की जाए इस तुंगभद्रा शब्द की अनेक अर्थ हैं। तुंगम अति उन्नतम भद्रम कल्याणम यस्या सा तुंगभद्रा, जो बड़े उत्कृष्ट कल्याण को प्रदान करने वाला। ये तुंगभद्रा कौन है? बोले ये शरीर ही तुंगभद्रा है। प्रेम से कहो श्री राम। क्योंकि ये शरीर उस ऊपर वाले ने बड़ी कृपा करके दिया है ताकि तुम अपना कल्याण कर सको। क्योंकि और किसी शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। यदि मुक्ति मिलेगी तो मानव शरीर से ही मिलेगी। किसी भी योनि में चले जाओ और किसी योनि में मुक्ति नहीं है। मानव शरीर ही मुक्ति का द्वार है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है। एक व्यक्ति किसी संत के पास गए और जाकर बोला कि महाराज मैं बहुत गलत काम करता हूं, अपराध किए और मैं चाहता हूं लेकिन मेरी बुराइयां छूटती नहीं। तो संत ने ना उसको कहा कि बेटा थोड़ा अपना हाथ दिखाना। संत ने हाथ मांगा, उसने दे दिया। उसका हाथ देखा और हाथ देखकर संत बोले कि देख बुराइयां तो अब तू भूल जा, मैंने तेरे हाथ की लकीरों को पढ़ा है, तेरे जीवन में 1 महीना बचा है बस। मैंने तेरी लकीर पढ़ ली है हाथ की, तेरी जीवन रेखा बता रही है कि तू 1 महीने का मेहमान है। 1 महीने बाद तेरी मृत्यु हो गई। अब तो महाराज उस व्यक्ति के होश उड़ गए बिल्कुल। और मालूम है क्या किए? संत से तुरंत भगवान नाम की दीक्षा ली, वहीं हाथ में माला उठाई और घर चला गया और खूब महाराज राम राम कृष्ण कृष्ण खूब भगवान का नाम जपने लगे। कब सुबह हुई कब रात हुई मालूम ही नहीं। पत्नी भोजन देती कि भोजन कर लो, तो कहता अरे मैं भोजन करूं, उधर मुझे मरना है, क्या करूं भोजन करके, अब तो मरना है मुझे। भोजन करे भी तो स्वाद ना आए। बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम है। ध्यान से सुनना महाराज। करते करते कब दिन निकला, कब रात निकली, होते होते 1 महीना गुजर गया। 1 मास व्यतीत हो गया, लेकिन अभी भी मौत नहीं आई। बार बार तारीख देखता है, घड़ी देखता है, कब आएगी मृत्यु, कब आएगी मृत्यु, लेकिन खूब भला चंगा बैठा है, मौत नहीं आती। शरीर भी बिल्कुल ठीक है। अरे संत ने तो कहा था 1 महीने में मरना है। जब कई दिन ऊपर हो गए तो फिर भागा भागा संत के पास गया और बोला कि महाराज जी, क्या आप लोगों ने झूठ बोलने का ये धंधा कर रखा है? इतना खुलेआम झूठ बोलते हो। संत ने कहा क्या बात हो गई? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आया था ना, आपने कहा था मेरे हाथ को देख कर कि 1 महीने में मृत्यु आएगी, मैं मर जाऊंगा। 1 महीना देखो हो गया पूरा, मैं तो आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूं, कोई तकलीफ नहीं, क्यों झूठ बोला? तो संत ने उसको कहा कि बेटा मेरे झूठ की बात हम पीछे करेंगे, पहले तू बता कि इस गुजरे हुए 1 महीने में तूने पाप कितने किए? तू कहता था मैं बहुत बड़ा पापी हूं, जरा मुझे बता कितने पाप किए तूने, याद कर। तो बोला कि महाराज मैं तो आपके चरणों से वो दीक्षा लेकर गया था, भगवान का नाम गा रहा था, मुझे तो मन में एक बार भी पाप करने की इच्छा नहीं हुई। मैं तो बस यही सोचता रहा अब दुनिया से जाना है, अब दुनिया से जाना है, और भगवान का भजन ही करता रहा। तो संत ने हंसकर कहा कि पागल, अब तू खुद सोच, तूने 1 महीने सोचा कि तुझे दुनिया से जाना है, तो तेरा मन दुनिया में नहीं लगा, भगवान के चरणों में लगा। अगर हमेशा के लिए सोच ले तो तेरा जीवन पाप मुक्त हो जाएगा। अगर तू ये बात मन में बिठा ले कि तुझे एक दिन जाना है, तो तू अपनी मंजिल पहचान जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक व्यक्ति सड़क पर चलता जा रहा था,
बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। कोई बेचारा सड़क के किनारे कोने में बैठा था, तो मालूम है क्या किया उसने? चलता हुआ जा रहा है और उस बैठे हुए व्यक्ति को गाल पर थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं उससे, कोई झगड़ा नहीं, बस चलते हुए उसको थप्पड़ मार दिया। पर जो बैठा था वो बेचारा भला इंसान था, उसने फिर भी हाथ जोड़कर पूछा, भाई साहब आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? हमारी तो कोई बात नहीं हुई, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा, आपने क्यों थप्पड़ मारा? बोले मैं तेरे झगड़ा करने का इंतजार थोड़ी करूंगा, मैं एडवांस में ही थप्पड़ मार के चलता हूं। प्रेम से कहो श्री राम, क्या मैं इंतजार करूंगा तू मुझे गाली दे तब मैं थप्पड़ मारूं? मैं पहले ही मार देता हूं। तो आप बताओ ये धुंधकारी नहीं तो और क्या है? आज समाज में ऐसे ही लोग ज्यादा मिलेंगे भैया। लेकिन गोकर्ण हम पंडित हो गया में, गोकर्ण जी महाराज परम पंडित, परम सोच समझ के इसको जीना, सोच समझ के इसको जीना, ना जाए बेकार प्यारे जीवन के वही कही गई भटक में प्यारे जीवन इस प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में पहला जो श्लोक है उसमें व्यास भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हम सब मिलकर उस परम सत्य का ध्यान करें। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं क्यों? क्योंकि वो परम सत्य ही बोले जो नहीं है वो सत्य। सीधी सी बात, जो है वो सत्य है भैया, जो है वो सत्य है, तो फिर हम भी हैं, संसार भी है, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब सत्य है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि चाहे हम हों, चाहे संसार हो, चाहे जो कुछ दिखाई दे रहा हो, ये है तो, पर ये शाश्वत नहीं है, ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। अब आप लोग कथा सुन रहे हो, इतना वर्षा में भी आप दूर दूर से आ गए कथा सुनने के लिए। आज तो कि आप सुन रहे हो व्यास जी से कथा कराई जा रही है, अब देखने में तो भैया ये सब सत्य ही लगता है, लेकिन मालूम है आपका कथा सुनना, मेरा कथा गाना, ये सत्य तो है, लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है, ये केवल 9 बजे तक का सत्य है। प्रेम से तो ये शाश्वत सत्य नहीं है। বৃষ্টি পড়ছে, তাও ভক্তরা আসছে। চলো
श्री प्रथु के रूप में लिया नववम पार्थवम वपु, और 10वां अवतार मेरे प्रभु राजा सत्यव्रत को कृपा करके प्रलय काल पार कराया, मत्स्य बनकर अवतार लिए, मत्स्यावतार। फिर आगे के 3 अवतार ये सागर मंथन के समय हुए। कमठ अवतार 11वां, 12वां धन्वंतरी अवतार, और फिर 13वां अवतार था मोहिनी अवतार। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और दैत्यों को छलने के लिए, लूटने के लिए मोहिनी बनकर बड़ा सुंदर रूप लेकर थे। इसी प्रकार से फिर 14वां अवतार भी बहुत विशेष है। अपने भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर खंभ से प्रकट होकर आए थे। मालूम है ना कौन सा अवतार था? बोलो नृसिंह देव भगवान। नृसिंह कल्कि बनकर और अधर्म का फिर विनाश करने और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेंगे कलयुग के अंतिम चरण में। क्योंकि कलिकाल की आयु बताई है 4,32,000 साल, और जिसमें से लगभग अभी केवल 5,500 साल निकले हैं। तो अभी सोचो आगे कितना कलयुग बचा हुआ। 4,32,000 साल कलयुग की आयु है, उसमें से केवल 5,000-5,500 वर्ष व्यतीत हुए। और अंतिम चरण में जब लगभग 600-700 वर्ष कलयुग के बाकी बचेंगे, तब अंतिम चरण में भगवान कल्कि बन के आए। अभी कल नहीं आ रहे, चिंता मत करो, प्रेम से कहो श्री राम। अभी बड़ा समय है कल्कि अवतार। अभी तो वो बांके बिहारी बन के हमारे बीच बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये अवतारों के संबंध में बताया। मौसम ठीक नहीं है, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित घर सब पहुंचे। और कल मौसम ठीक रहा तो बिल्कुल समय से ही कथा मैं आऊँगा। मैं आप लोग भी समय से ही आइएगा। आज इस प्रसंग पर ही मैं आज की कथा को
দ্বিতীয় দিন, আজকে দ্বিতীয় দিন ছিল, দারুণ এনজয় হয়েছে। এখনই শেষ হলো 9:40-এ। তো আপনারা কালকের জন্য উপস্থিত হলেন, আসবেন। বুঝতে পারছেন, এখন শেষ হলো। अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागियों को सभी यथासंभव करेंगे। আপনারা আসবেন কালকে। समय से